Hello everyone. So now with just 40 days left to CAT, most of the students are panicking that अरे हमारा preparation कहाँ जा रहा है? We have no idea. The problem is you guys don't have a proper visibility of where your preparation is going. This video I'm going to tell you exactly which are the few things जो most students करते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा preparation बिगड़ जाता है. First thing, the biggest mistake that most students will make at this point is going to be taking too many mocks. I'm telling you why. Because क्या होता है? अब दिन बचे हैं 40. स्टूडेंट्स थिंक दैट 40 दिन अगर मैं ऑल्टरनेट डेज को भी मॉक्स दे रहा हूं तो 20 मॉक्स हो जाएंगे, डन. बट नाउ अंडरस्टैंड, एनी क्लासेस दैट यू गो टू, वो लोग तुम्हें कितनी मॉक्स देंगे? दे विल गिव यू 25 और 30 मॉक्स. देयर इज अ रीजन वो तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन के लिए 25-30 मॉक्स देते हैं. एंड इफ यू टॉक टू एनी सीजन्ड CAT taker or any good teacher who teaches for CAT, they will say 15 से 20 मॉक्स बहुत हो जाते हैं और बाकी तुम बस लास्ट ईयर के पेपर्स देख लो. द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट अबाउट कितनी मॉक्स तुम दे रहे हो, इट इज प्योरली अबाउट हाउ वेल आर यू एनालाइजिंग द मॉक्स विच यू आर टेकिंग. नाउ द थिंग इज दैट if you are taking a mock, you are going to make mistakes during the exam because of the stress. Make a few mistakes on selection of questions, the method that you use, missing out on a few important pointers. What you have to do during all of these mock taking sessions is that you will write down your thoughts during the exam, and so that you can analyze that when you are analyzing the mock. Understand that please, 2 घंटे का तुम्हारा मॉक होगा, उसका एनालिसिस कम से कम 4-4.5 घंटे का होना चाहिए, so that you can properly understand what went wrong in this mock and why were you not the topper. So please understand, it's not about score maximization. And another mistake that you guys can make, I'll tell that this is the second mistake. The second mistake is students try to solve as much as they can, या फिर जितने questions है they work on score maximization. नहीं, this is the worst thing that you can do. Why? Because guys, if you see historically, CAT में 99 percentile is at a less than 50% score. That is, even if you take last year का CAT, out of 198, 84.26 marks were a 99 percentile. That means तुम्हें सब कुछ आने की जरूरत नहीं है और सब कुछ करना भी नहीं है. तुम पूरा पेपर में से सिर्फ आधा सॉल्व कर दोगे, you will be a 99.5 percentiler. That is 198 में से 99 marks. You are a 99.5 percentiler. Please understand, you do not have to solve everything. That is the biggest mistake that you will make. Your approach instead of this should be, I am only and only going to solve the questions that I know. I will go through the entire paper. पूरा सेक्शन है, जितना टाइम मिला है मैं पहले सारे क्वेश्चंस देखूंगा. I will note down. I can solve the 14th question, I can solve the 12th question, I can solve the 26th question. ऐसे करके देखो तुम्हें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. Put them into 3 categories. एक मुझे इमीडिएटली आता है, एक मैं शायद कुछ चेंज करके शायद कुछ जुगाड़ लगा के सॉल्व कर सकता हूँ, एंड थर्ड, आई कैन नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चंस. So if you cannot solve these questions, the C category questions are about 5 or 6 out of 24 questions. जाने दो उनको, don't even look at them. You have other 18 questions to look at. 18 में से तुम्हें solve करने, 24 में से 12-13, max 14 कर लो, and you will be a 99 plus percentiler with a guarantee. Okay? So guys, please understand, it is about making sure that you are solving everything that you know, recognizing that what questions you can solve, and finally making sure that you have a very very high accuracy. So right now in your mocks, your approach will be that मुझे 10 questions आते हैं, मैं 10 questions सही करूँगा. And please God help me, अगर तुम लोग questions गलत करते रहोगे तो तुम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले. I know students जिनको CAT में नेगेटिव स्कोर आया है. लास्ट ईयर अ स्टूडेंट विथ अ 14 परसेंटाइल, 14 परसेंटाइल, उसको -8 मार्क्स थे. 14 परसेंटाइल 0 मार्क्स पे आता है अराउंड 23-25 परसेंटाइल. मतलब 25% लोग आर बिलो 0 बिकॉज वो नेगेटिव मार्किंग में घुस जाते हैं. जितना देखे उतने सम सॉल्व कर देते हैं और सब कुछ गलत करते हैं. तो इट्स बेटर दैट यू वॉक आउट ऑफ द पेपर इफ यू डोंट नो एनीथिंग, but don't solve questions that you are not sure about. The third mistake that students make during their CAT preparation is not paying attention to the basics. देखो guys, अभी अगर तुम ट्रिक्स सीखने गए तो प्रॉब्लम क्या आएगी? I know there are too many crash courses out there. तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स आते होंगे, CAT को 40 दिन है, हमारा क्रैश कोर्स है, ले लो, सारे ट्रिक्स सिखा देंगे. पर गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी पता है? CAT में एज आई सेड 50% मार्क्स लाने हैं और 50% सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ही होता है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब यू शुड नो, अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, मैं इसको कौन सी मेथड से सॉल्व करूंगा. इसके लिए ट्रिक्स की जरूरत नहीं है. ट्रिक्स होते हैं जब तुम बहुत ज्यादा फास्ट सॉल्व करना चाहते हो. ये चीजें CAT में जरूरी नहीं होती. बिकॉज प्रॉब्लम इज प्रिपरेशन 2 पार्ट्स में चलता है. एक होता है मेंटेनेंस और एक होता है लर्निंग न्यू थिंग्स. अगर तुमने जितना तुम्हें आता है उतना मेंटेन नहीं कर रहे तो एग्जाम में क्या होगा? समझो अगर तुम्हारा टाइम स्पीड डिस्टेंस तुम्हें लगता है स्ट्रॉन्ग है और अभी अगर तुम टाइम स्पीड डिस्टेंस की जगह पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की ट्रिक सीखने चले गए तो तुम एग्जाम में TSD का भी सम गलत कर दोगे और PNC का भी सम गलत कर दोगे. ये होगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एंड यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट आफ्टर द
the paper ends or during the paper itself. Don't try to learn new things now. This is the time you will only look at strategy. You'll only make sure that जो तुम्हें आता है तुम उसको 100% गारंटी के साथ कोई कितना भी टफ क्वेश्चन फेंक दे सॉल्व करोगे. Mistake 4 is not following a good schedule or following a wrong mentor. See, I'm not saying that कोई mentor, मैं किसी पे blame नहीं कर रहा, that कोई तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा है, क्या कर रहा है. But there is a difference between a person who is trying to market everything and there is a difference between a person who is trying to tell you what is good for you and what is not good for you. You can understand this only basis the way that they are speaking. If it seems too motivational that अरे easily हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, अरे ये वाला अप्रोच यूज कर लो, 3 टुकड़ों में बांट दो और 30 मिनट्स में सब कुछ डिवाइड कर दो. ट्रस्ट में ये सारी ट्रिक्स सबके लिए काम नहीं करती. अगर कोई तुम्हें ऐसा अप्रोच देता है जो वो YouTube पे दे रहा है और सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, ये सबसे गलत अप्रोच है. A right approach is personalized approach because तुम्हारा प्रिपरेशन तुम्हारे बाजू वाले के प्रिपरेशन से अलग है. वो वीडियो देखने वाले 10,000 लोग होंगे, 10,000 लोगों में से 10,000 लोगों का प्रिपरेशन अलग है. A good mentor is the one who will look at your preparation and tell you तुम कहाँ गलत, तुम कहाँ सही जा रहे हो. Please make sure that you are not looking at people who are just showing you very big dreams और बहुत ज़्यादा motivational videos डालते हैं that ये कॉलेज से कर लो 25 लाख का पैकेज, ये कॉलेज से कर लो 40 लाख का पैकेज, टॉप पैकेज 1 करोड़ मिल गया. ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो. अभी तुम्हारा गोल है सिर्फ एग्जाम से अंदर जाना. आजू बाजू की चीज़ों को देखना बंद कर दो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज फॉलो अ टाइम टेबल. Although तुम्हारा अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी सबसे अलग होगा, योर टाइम टेबल हैज़ टू बी समथिंग दैट इज सेट. एंड वो टाइम टेबल में क्या क्या होना चाहिए? वो टाइम टेबल में होना चाहिए तुम्हारा क्वांट्स के कंसेप्ट क्लैरिटी, क्वांट्स के टेक्निकल की ट्रिक्स, LR के पजल सॉल्व करना, LR के स्टैंड अलोन छोटे मोटे LR के क्वेश्चन सॉल्व करना विच बिल्ड योर पजल्स का स्ट्रेंथ. DI का रोज एटलीस्ट तुम्हारा 1 सेट होना चाहिए, मैक्सिमम 3 सेट करो, उसके ऊपर मत जाना. एंड इंग्लिश के एटलीस्ट 2 RC और 2 पैराजम्बल्स अभी होने चाहिए एवरी डे. वॉट आई एम डूइंग फॉर आवर कोर्स दैट इज क्रैकेवी टेस्ट का CAT 75 हार्ड का जो कोर्स चालू है, वॉट वी डू एवरी डे, हम CAT का एक पेपर लेते हैं पास्ट ईयर का. आई सिलेक्ट द क्वेश्चंस दैट आज तुम्हें ये सॉल्व करने हैं. Every question, all the number of questions that are selected are based on इतना solve कर लो, you are going to be a guarantee 99 percentiler. And that is why we are even seeing great results that students जो कर रहे हैं उनको already उनके scores में काफ़ी ज़्यादा उनका scores बढ़ रहा है, उनके percentiles भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं in all the mocks that they are taking. So this is the next mistake that students are making, that following anybody and looking at the wrong kind of motivation or wrong kind of videos. And the fifth and the biggest mistake that you will make right now is overthinking and panicking. अब देखो 40 दिन बचे हैं. इन 40 डेज अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम 40 दिन में कर पाओगे जो तुमने पहले 6 या 8 या 10 या 12 महीने में नहीं किया है. बट वॉट यू कैन डू इन दीज 40 डेज इज एक्चुअली नॉट पैनिकिंग, मेकिंग श्योर दैट जो तुमने पिछले 2, 3, 6, 8, 10 या 12 महीने के लिए किया उसमें तुम गलती ना. दिस इज द टाइम टू परफेक्ट वॉट एवर यू नो एंड मेक श्योर दैट जो तुम्हें आता है तुम इसमें मिस्टेक्स नहीं करोगे. बिकॉज ट्रस्ट मी, तुम्हें एटलीस्ट आधा पोर्शन आता है और आधे पोर्शन के साथ तुम आराम से CAT पास हो सकते हो. CAT इज एन एग्जाम वेर यू नीड टू नो हाउ टू टेक द एग्जाम एंड नॉट हाउ टू सॉल्व द एंटायर पेपर. 100% मार्क्स नहीं लाने, बस तुम्हें 50% मार्क्स लाने हैं. फॉलो दिस अप्रोच एंड ट्रस्ट मी, डोंट मेक दीज 5 मिस्टेक्स, योर पेपर विल गो वेरी वेल. इफ यू गाइज नीड एनीथिंग मोर फ्रॉम मी देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स. बाय एवरीवन.